Hello student, this is KD here, and in this video I'm going to tell you about EVS chapter 12, our neighborhood. I have already given you the video of our neighborhood part 1 before and explained you about the scenario, but in this video I am going to read out and explain you directly from your school textbook. So let's start. EVS chapter 12, our neighborhood. First of all, क्या है neighborhood? I'm going to tell you what is neighborhood. Neighborhood is the surrounding where we live. Neighborhood वो परिवेश है जहाँ पर हम रहते हैं. All of us live in a neighborhood. It consists of different types of houses, roads for traveling, markets for our different needs, a proper drainage system, parks, school, and other amenities. Let's move ahead. If I tell you, describe your neighborhood, what you are going to say? अगर मैं बोलूँ आप अपने परिवेश को, आप अपने नेबरहुड को डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए, तो आप क्या करेंगे? You are going to say that my neighborhood is a very crowded place, or you may say that my neighborhood is very beautiful, full of greenery, and full of my friends. It has beautiful houses, roads, schools. It has cinemas, theaters. It has schools, colleges. It has railway station. All these things you are going to say. It has many shops, malls. Now, what is community? We are going to see what is community. All of you know now what is neighborhood. आप सभी को समझ में आ गया neighborhood क्या है. जो हमारे आजू बाजू के जो परिवेश है, आसपास का जो इलाका है जहां हम रहते हैं, इन सारे चीज़ों को लेकर बनता है हमारा नेबरहुड. So now come to more detail. We will go to neighborhood. Our neighborhood, the people living with us in our neighborhood are our neighbors. जो भी हमारे नेबरहुड में हमारे साथ रहते हैं उन्हें हम नेबर्स कहते हैं, यानी हमारे पड़ोसी होते हैं. वो जो हमारे घर के आजू बाजू रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, उसे हम अपने पड़ोसी मानते हैं, नेबर्स. एंड टुगेदर वी फॉर्म कम्युनिटी. और जब हम और हमारे नेबर्स यानी पड़ोसी मिलकर जब इस वातावरण को बनाते हैं तो इसे कम्युनिटी कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी. वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन. हमें अपने नेबरहुड को यानी अपने इलाके को, अपने आसपास के वातावरण को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए. एंड ग्रीन, दैट इज फुल ऑफ ट्रीज. नाउ द म्युनिसिपल, लेट्स मूव अहेड. The municipal authorities ensures the cleanliness of a neighborhood. अब हमारे जो नेबरहुड है, हमारे जो परिवेश है, इसे साफ सुथरा रखने का जिम्मेदारी किसका है? म्युनिसिपल ऑथोरिटीज़. ये साफ सुथरे रखते हैं. आप लोगों ने देखा होगा सूर्याग्रह म्युनिसिपल ऑथोरिटीज़, या आपने देखा होगा मुंगेर म्युनिसिपल ऑथोरिटीज़. ये जो अलग अलग म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं या अथॉरिटीज़ होते हैं, ये सरकारी बॉडीज़, ये इस नेबरहुड को साफ़ रखते हैं. गंदगी अगर होता है तो उसे साफ़ करते हैं, मैला साफ़ होता है, नेबरहुड के चारों तरफ बत्ती लगा हुआ है कि नहीं, साफ़ सुथरा है कि नहीं, रास्ते अच्छे से है कि नहीं, ये सारा का सारा जिम्मेदारी म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ का होता है. ऑल द टू लुक आफ्टर द एनवायरनमेंट has been supplied with proper sanitation, with proper water supply. All these things which look after the municipal authorities ensures the cleanliness of a neighborhood. We should help them by arranging for proper disposal of waste products. अब हम हमारे
परिवेश को, वातावरण को म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ साफ सुथरा रखते हैं। पर ये हमारा भी जिम्मेदारी है कि एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ हमारा ये जिम्मेदारी है कि एक अच्छे नागरिक होने का जिम्मेदारी हमें निभाना चाहिए। हमें गंदगी जो है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ साफ करने की कोशिश करते हैं, हम उसके इस कार्य में साथ दें और म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ के साथ हम भी अपने परिवेश को साफ रखें, यानी कि कूड़ा करकट यहाँ वहाँ ना फेंकें। फिर हम अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों का नष्ट ना करें। ये सब करके हम अपने परिवेश को यानी अपने नेबरहुड को बचा सकते हैं और हम अपना योगदान दे सकते हैं। It should be the duties not only the municipal authorities, but it should also the duties of a citizen. When you as a citizen, it is your duty to keep your environment, to keep your neighborhood clean by arranging to grow more trees, by not throwing the garbage here and there, then keeping your surrounding clean. It must be your duty also. Then we should make an attempt to reduce the quantity of waste products. जो भी हमारे घर से जो कूड़ा करकट निकलता है, जो हम वेस्ट अपने घर से बाहर फेंकते हैं, हमें उम्मीद रखना चाहिए कि इतना कूड़ा करकट हम अपने घर से बाहर ना फेंकें, ताकि हमारा एनवायरनमेंट, हमारा नेबरहुड इतना गंदा ना हो। सो वी शुड मेक एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय रीयूजिंग द थिंग्स दैट वी आर प्लानिंग टू थ्रो अवे। इससे बेहतर है कि हम कुछ कूड़े को बाहर फेंकें। बाहर फेंकने से अच्छा है कि हम उसका प्रयोग घटा दें और या तो उसको रीयूज यानी फिर से उसी चीज़ का हम इस्तेमाल बार बार करें। जैसे कि ओल्ड बॉक्सेस एंड कैंस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज। जैसे पुराने बक्से जो होते हैं या जो कैंस होते हैं, वो हम कुछ चीज़ को रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। उसे हम बाहर फेंक नहीं सकते। तो इससे क्या होगा, हम रीयूज़ भी कर लिए, जो चीज़ की वस्तु की आवश्यक नहीं है वो हम दूसरे कामों के लिए उसका इस्तेमाल भी कर लेंगे, और हमारा पर्यावरण यानी हमारा नेबरहुड सुंदर भी रहेगा, ज़्यादा कचरा भी नहीं निकलेंगे और पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। इन दिस वे वी कैन कीप आवर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन। सो नाउ ओल्ड न्यूज़पेपर्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस रिसाइकिल पेपर। जो पुराने अखबार के पेपर होते हैं, जो पुराने अखबार के कागज़ होते हैं, उन्हें फेंकने से अच्छा है कि हम उसे रैपर बनाकर या ठोंगा बनाकर या कोई चीज़ को रखने के लिए इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, उस पुराने अखबार का कागज़ भी यूज़ हो जाएगा और हम उसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं। Recycling is the best method for reducing the quantity of waste products. रिसाइकिल यानी फिर से किसी वस्तु को यूज़ करना को बोलते हैं रिसाइकिल। तो रिसाइकिल ही सबसे बेहतर तरीका है। हम अपने सामान का प्रयोग कम कर सकते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल यानी व्यवहार घटा सकते हैं। अब आगे देखते हैं। Uses of plastics products should be minimized as these are non-biodegradable. हमें जितना हो सके प्लास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे वातावरण के लिए खतरनाक है, हानिकारक है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल उस पदार्थ या उस वस्तुओं को कहते हैं जिसका हम वातावरण में बार बार हम बदलाव नहीं कर सकते, जिसे सड़ा कर गला कर फिर से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे पदार्थों को, ऐसे चीज़ों को नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक को हम फिर से गला कर या सड़ा कर हम नहीं रख सकते या हम नहीं बोल सकते। जिस तरह प्लास्टिक्स है या शीशा है, ग्लासेस एंड प्लास्टिक्स कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। अगर हम प्लास्टिक या शीशे के सामान को अगर हम मिट्टी के अंदर भी गाड़ दे तो मिट्टी भी इसे सड़ा या गला नहीं सकता, प्लास्टिक को और शीशे को। तो ये नॉन
बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं जो हमारे वातावरण के लिए हानिकारक हैं। इसीलिए जितना हो सके हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सामान को या पदार्थों को, जैसे शीशा, प्लास्टिक्स, इन सब चीज़ों को कम से कम प्रयोग करें। देन इको फ्रेंडली, विच इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल वो पदार्थ हैं जिसको मिट्टी गला या सड़ा सकते हैं, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, जो मिट्टी में पिघल सकता है। जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स, यानी कि जो किचन से निकले हुए जैसे सब्जी या फल फ्रूट या पत्ते, फल फ्रूट, पत्ते, ये जो भी हैं इसको मिट्टी में गलाया जा सकता है और इसको मिट्टी फिर से वापस अपने गला या सड़ा कर मिट्टी अपने अंदर इसे ले सकते हैं। जैसे सब्जी, कागज या फल के छिलके, सड़े हुए फल या सब्जियां के वेस्ट, फेंके हुए फल, सब्जियां, कागज, इन सारे चीज़ों को मिट्टी फिर से सड़ा कर गला कर वो अपने अंदर ह्यूमस बना लेती हैं, जो बहुत ही अच्छा होता है नए पौधों को बढ़ाने के लिए। तो वी शुड यूज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, वी शुड यूज़, जितना हो सके हमें इको फ्रेंडली पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल सामानों का, जैसे शीशा, प्लास्टिक, इन सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है लाइक प्लास्टिक बॉटल्स का जितना कम इस्तेमाल करें वो अच्छा है। तो अब आप समझ गए होंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम देखेंगे कि रीडिंग अ मैप, मतलब मैप जो मानचित्र होते हैं, जो नक्शा होता है, वो अलग अलग तरह के होते हैं। बहुत सारे चीज़ों की आवश्यक होती है एक नक्शे को, एक मैप को समझने में। सो रीडिंग अ मैप, मैप्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वी कैन रीड अ मैप इफ वी लर्न अबाउट इट्स मेन फीचर्स। हम मैप के बारे में अच्छे से बता सकते हैं अगर हमें मैप की यानी उस नक्शे की पूरी जानकारी हो तो। The time taken for a plastic object is fully decomposes can vary between 450 to 1000 years। मतलब इस नोइंग इस फन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको पता चलेगा कि एक प्लास्टिक चीज़ को सराहने गलाने के लिए इस वातावरण को 450 से 1000 वर्ष लगते हैं फॉर अ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट टू फुली डिकम्पोज। मतलब इतना लंबा समय लगता है एक प्लास्टिक को गलाने या सड़ाने में, डिकम्पोज करने में। इसीलिए हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए। Now come about reading a map. Maps contain different types of information and we can read a map if we learn about its main features। मैप में अगर हम देखेंगे, मानचित्र में, अगर एक नक्शे में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दी गई जाती है। अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग माने डिज़ाइन बने होते हैं उसके ऊपर। अगर हमको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगी तो हम एक नक्शे को आराम से पढ़ कर बता सकते हैं कि उस नक्शे का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्शंस। वी हैव लर्न दैट इफ वी स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, द डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ अस इज द ईस्ट एंड बिहाइंड इज वेस्ट, टू आवर लेफ्ट इज नॉर्थ एंड टू आवर राइट इज साउथ। अगर हम खड़े हो जाए सूरज की तरफ मुँह करके तो हमें पता चलेगा कि जो सूरज जहाँ से उग रहा है, जहाँ पे हमने शक्ल अपना चेहरा सूरज की तरफ करके है और सूरज वहीं से उग रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो ईस्ट है यानी पूरब, और हमारे पीछे है वेस्ट यानी पश्चिम, और हमारे बाएं साइड पर नॉर्थ होगा यानी उत्तर,
और हमारे राइट हैंड साइड यानी दाएं साइड पर साउथ होगा यानी दक्षिण। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का भी पता लगाया जा सकता है। तो ये डायरेक्शन बहुत मायने रखता है, ये दिशा बहुत मायने रखता है एक मैप को समझने में, एक मानचित्र को, एक नक्शे को समझने में। तो डायरेक्शंस। नाउ नेक्स्ट फीचर इज स्केल। अब स्केल क्या है? द स्केल इज यूज टू शो द डिस्टेंस ऑन अ मैप। फॉर एग्जाम्पल 1 centimeter can be used to represent 1000 kilometer. Hence, if the distance between the two cities is 4000 kilometer, it will be shown as 4 centimeter on the map. तो स्केल के मदद से हम बड़े बड़े लंबे फासलों को छोटे संख्या में दिखा सकते हैं। जैसे अगर हम 1 सेंटीमीटर को 1000 किलोमीटर पकड़े, तो मैप में 1 सेंटीमीटर का मतलब अगर 1000 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर अगर हमें मैप में दिखाना हो यानी नक्शे में दिखाना हो, तो हम 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है 4 सेंटीमीटर मतलब 4 किलोमीटर। तो ये था स्केल। नाउ लेट्स मूव अहेड कलर्स। रंग भी बहुत मायने रखते हैं हमारे मानचित्र में, नक्शे को समझने में, मैप में। कलर्स, different colors are used to show the different places on the earth. Blue is used to show water bodies such as rivers, oceans, and lakes, while green represent the plains, yellow shows the highlands, and brown is used to show hills and mountains. तो रंगों का भी अपना महत्व होता है एक मैप में, एक मानचित्र में। जैसे कि ब्लू रंग दिखाकर हम सागर, महासागर, नदियाँ, झरने और तालाब को दिखा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हरा रंग जो है वो हम प्लेन को दिखा सकते हैं हरा रंग दिखाकर, या पेड़ पौधों को दिखा सकते हैं हरा रंग दिखाकर। और पीला रंग जो है येलो शोज हाईलैंड, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, जो हाईलैंड्स है प्लेटो जैसे, उसको हम पीले रंग से दिखा सकते हैं। या डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो उसे पीले रंग में दिखा सकते हैं। एंड ब्राउन इज यूज टू शो हिल एंड माउंटेन्स। और जो चॉकलेटी कलर है, जो चॉकलेट कलर है, उसको दिखाकर हम ये साबित कर सकते हैं कि उस स्थान पर जहाँ जहाँ चॉकलेट रंग दिया गया है वहाँ बड़े बड़े पर्वत, ऊंचे पर्वत और पहाड़ हैं। तो ये था कलर्स का महत्व। अब आते हैं मैप में साइंस एंड सिंबल्स ऑन मैप। अब देखिएगा कि मैप में अलग अलग सिंबल यानी चिन्ह बने होते हैं, अलग अलग आकार बने होते हैं। इनका भी अपना ही महत्व है मैप में। मैप्स यूज मैनी साइंस एंड सिंबल्स टू गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अलग अलग आकार बने हुए थे मैप में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नदी जो है ब्लू रंग का होता है और ऐसे खींचा हुआ होता है सांप की तरह। उसको देखकर समझ जाएंगे कि ये नदी है यहाँ। देखिए ये साइन देखकर आपको पता चल जाएगा, लंबा साइन, ये ब्रिज है। उसके बाद रेलवे लाइन जो है इस तरीके से दिखाया जा सकता है, इस तरीके से चर्च दिखाया जा सकता है। तो टाउन ऑफ अ विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्ट्रीम्स, टेम्पल, माउंटेन पीक, एयरपोर्ट, टेम्पल, मॉस्क, कंट्री कैपिटल। देखिए कंट्री कैपिटल को चरकुत्ते के अंदर स्क्वायर बॉक्स दिखाकर हम ये बता सकते हैं कि ये देश की राजधानी है। एंड ट्रायंगल साइन दिखाकर ये बता सकते हैं कि माउंटेन पीक है। तो इस तरह से अलग अलग मैप में यानी कि मानचित्र में अलग अलग तरह के ये साइंस और सिंबल्स यूज होते हैं, जो हमें अलग अलग मैप की जानकारियाँ देते हैं। So at times certain landmarks are highlighted on a map so that it becomes easier to locate different places. A landmark is a place that we can easily recognize like hospital, post office or school. अब मैप में अलग अलग लैंडमार्क देकर हाईलाइट किया जाता है ताकि हमारे लिए मैप को समझने में बहुत आसान होता है। तो लैंडमार्क है क्या? लैंडमार्क वो जगह है जो चिन्ह होता है, जिसको दिखाकर हम अलग अलग स्थान को बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का लैंडमार्क कोई हॉस्पिटल है या पोस्ट ऑफिस है या स्कूल है, ये स्कूल, पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल दिखाकर हम नक्शे के लैंडमार्क को दिखा सकते हैं।
नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम देखेंगे टेकिंग केयर ऑफ आवर नेबरहुड। अब हम अपने आस पड़ोस को यानी कि अपने नेबरहुड को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर नेबरहुड। टेकिंग केयर ऑफ आवर नेबरहुड, हाउ वी शुड ट्राई टू टेक केयर ऑफ आवर नेबरहुड। थिंग्स which belong to the people living in any area is called public property. It is our duty to keep it safe. जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होता है उसे हम सेफ रख सकते हैं, बता सकते हैं, उसका नुकसान ना हो। पार्क्स इन आवर नेबरहुड शुड बी केप्ट एंड क्लीन एंड ग्रीन। जो भी पार्क्स हमारे इलाके में उसे साफ और हरा भरा रख सकते हैं। वी शुड थ्रो वेस्ट प्रोडक्ट्स ओनली इन अ डस्टबिन। डस्टबिन में ही हम अपना वेस्ट प्रोडक्ट फेंकें। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स इन द पार्क। हमें अच्छे गार्डन से या बागीचे से फूल नहीं तोड़ने चाहिए, फूल शोभा होती है गार्डन का। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एन एरिया आर ऑल्सो पब्लिक प्रॉपर्टीज। वी शुड मेंटेन इट्स क्लीनलीनेस। जो पब्लिक प्रॉपर्टीज होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जैसे बस, गाड़ियाँ, ट्रेन, इनका भी हमें देखभाल करना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है। वी शुड कीप द पब्लिक स्पेसेस लाइक बैंक्स एंड स्कूल्स क्लीन। जो पब्लिक प्लेसेस है जैसे बैंक, स्कूल, चिड़ियाघर, ये इन सब स्थानों को भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। आवर एम शुड मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन आवर नेबरहुड। और हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हम अपने आजू बाजू, अपने इलाके में, अपने नेबरहुड में शांति और भाईचारा बनाए रखें। देन वी शुड हेल्प आवर नेबर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नीड। हमें अपने जो नेबर्स जो होते हैं, जो पड़ोसी, मुश्किल के समय में उनका साथ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर ऑफ आवर नेबरहुड। आशा है कि आप इस चैप्टर को भली भांति समझ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड एंजॉयड इट। आपको ये चैप्टर अच्छे से लगा होगा और आप ये चैप्टर समझ गए होंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन, गुड बाय, बी सेफ, सी यू अगेन।